Well, hello students. Now, yesterday there was the first edition of JEE Mains 2021. Now, in the first shift, I'll be the questions which appeared from the 12th syllabus. Now, let us discuss those questions. Now, in another part of this video, I'll be discussing the questions which appeared from the 11th part also. So first, let's focus on the 12th part. So this is the paper of 24th February, first shift. Now in the from the 12th syllabus, the first question that appears is, in fact, a question from probability chapter. Now you have a fair die. A fair die is tossed n times. Now the probability that an odd number appears twice is equal to the probability of getting an even number thrice. So let us say, in fact, so probability that x is equal to odd. Now let us say x is the event of getting an odd number. So if this is the event, now if you are tossing these dice n number of times, it is highly possible that you can get an odd number once, 0 times, once, twice, or n times. So if I am considering the probability of success of this event, it will be half, and probability of failure is equal to how much? Half. This is a clear case of binomial probability. So probability of x equal to r. Now this will be equal to how much? So this is given by NCR, p to the power r into q to the power n minus r, as per the basic theorem of binomial probability. Now the probability that an odd number appears 2 times, the odd number appearing twice, so that means probability of x equal to 2. Now this is equal to the probability of getting an even number thrice. See, that means q occurs 3 times. So let us say this q event is y. So this is equal to probability of y equal to 3. So according to the basic theorem, I can say nc2 into p square into q to the power n minus 2. Now this will be equal to nc3 into p to the power in fact n minus 3, and here q to the power 3. Since p and q, both of them are equal to half, so what will I write? I'll write nc2 into half to the power n is equal to nc3 into half to the power n. If we cancel out half to the power n, you get n into n minus 1 by 2 is equal to n into n minus 1 into n minus 2 divided by 6. That is 3 factorial. अब इसमें से n minus 1 by 2 काट देते हैं, 3 इधर आ गया, so 3 is equal to n minus 2, so n is equal to 5. अब क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि the probability of getting an odd number of times. तो आप ये समझो कि आपने डाई को 5 बार थ्रो किया, तो odd number of times एक odd number आए, तो odd number क्या क्या हो सकता है? 1, 3, 5. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी गेटिंग एन ऑड नंबर कितना है? हाफ. तो अब हम यहाँ पे 5 बार अगर हमने अटेम्प्ट किया है थ्रो, तो या तो एक बार आया ऑड नंबर, और प्रोबेबिलिटी दैट यू गेट एन ऑड नंबर 3 टाइम्स, और द प्रोबेबिलिटी दैट यू गेट एन ऑड नंबर 5 टाइम्स. ये हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगा, और इसे हम क्या लिखेंगे? 5c1 into 1 by 2 whole to the power 5. 5c3, this will be 5c3 into half to the power 5, 5c5 into half to the power 5. अब इसे जोड़ लिया जाए तो 5c1 is 5 plus 10 15, sorry 15 plus 1 16, तो 16 by 2 to the power 5, और ये होता है that is 16 by 32, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गया हाफ.
तो ये पहला क्वेश्चन जो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है, उसे हम कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. Now let's come to the second question. The second question is based on a simple equation of variables separable form, that is differential equation. Question में हमें ये कहा गया है कि population growth of a town at any given time is given by dp dt is equal to 0.5 times p minus 450. और ये दिया हुआ है कि P0 is 850 और हमें निकालना है कि पॉपुलेशन जीरो कब होगा, यानी P इक्वल टू 0 कितने टाइम पे होगा, T निकालना है. और इसमें ऑप्शंस है log 9, 3 log 4, 2 log 18 और log 18. तो ये हम इसे ऐसे लिख सकते हैं P/2 यानी P minus 900 divided by 2 dp dt is equal to this much. अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, तो dp by p minus 900 is equal to in fact dt by 2 ऐसा लिखा जा सकता है. अब अगर हम इंटीग्रेशन करें तो dp by p minus 900 is equal to dt by 2 यानी log of p minus 900. Now this is t by 2 और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट that is c. यानी p minus 900 is equal to e to the power t by 2 plus c और इसे हम लिखेंगे e to the power c into e to the power t by 2. टाइम t equal to 0 पे पॉपुलेशन कितना है 850, तो एट t equal to 0 850 minus of 900 ये e to the power c into e to the power 0 यानी e to the power c is minus 50 ऐसा कह सकते हैं. अब ये अगर कहते हैं तो p is equal to 900 minus 50 into e to the power t by 2 और ये हमारा पॉपुलेशन का इक्वेशन हो गया t के टर्म्स में. अब p को अगर हम 0 करते हैं तो 0 is equal to 900 minus 50 times e to the power t by 2. 50 काट दिया जाए तो 18 is equal to e to the power t by 2. So t by 2 is ln 18 यानी t is equal to 2 ln 18. So this is the correct option. Now let us come to the third question. तीसरा सवाल है टेंजेंट नॉर्मल, जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का चैप्टर है, इसके ऊपर बेस्ड. अब इसमें दिया हुआ है कि टेंजेंट एट द पॉइंट t, t क्यूब ऑन द कर्व y इक्वल टू x क्यूब और ये मीट करता है q पे. अब pq को हमने इसको डिवाइड किया 1:2 रेशियो में, तो ये जो पॉइंट R है इसका ऑर्डिनेट पूछा गया है. अब अगर मैंने पॉइंट P हमें दिया हुआ है t, t क्यूब, एनी पॉइंट t q कैन बी assumed to be t1, t1 क्यूब. अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखेंगे, y माइनस ऑफ t क्यूब इज इक्वल टू dy dt by dx dt यानी 3t स्क्वायर into x minus t. अब ये इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो t1 क्यूब माइनस ऑफ t क्यूब इज 3t स्क्वायर into t1 माइनस t. t1 माइनस t का एक फैक्टर इसमें हम कैंसिल करते हैं, तो t1 स्क्वायर प्लस t स्क्वायर प्लस t1 इज इक्वल टू 3t स्क्वायर यानी t1 स्क्वायर प्लस t1 माइनस ऑफ 2t स्क्वायर 0 हो गया और इसे फैक्टराइज करते हैं, तो t1 प्लस 2t इंटू t1 माइनस t 0 होगा. अब चूंकि p और q दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, तो क्या t1 t के बराबर होगा, तो नेचुरली ये फैक्टर 0 नहीं हो सकता. तो कौन सा 0 होगा, ये वाला फैक्टर 0 होगा, यानी पॉइंट t1 इज इक्वल टू माइनस 2t. तो अब इसके टर्म्स में अगर हम इस पॉइंट को लिखते हैं तो ये पॉइंट हो गया माइनस 2t और ये माइनस ऑफ 8t क्यूब
P हमें दिया हुआ है t कमा टी क्यूब, हमें चाहिए y कोऑर्डिनेट। तो अगर ये x y है तो y हम क्या लिखेंगे, 1 इंटू माइनस 8t क्यूब प्लस 2 इंटू टी क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, और ये आता है माइनस ऑफ 2t क्यूब। तो ये सही ऑप्शन कहलाएगा। अगला फोर्थ क्वेश्चन है, दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और ये मोनोटोनिसिटी चैप्टर से रिलेटेड है। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहां एक फंक्शन है fx इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस ऑफ 3x स्क्वायर बाई 6 माइनस ऑफ 2 sin x प्लस 2x प्लस माइनस 1 इंटू cos x, और हमें ऑप्शंस 4 दिए गए हैं कि fx is decreasing in half to infinity, it is increasing in half to infinity, decreasing in r, और increasing in minus infinity to half। तो इसे सीधे डिफरेंशिएट करें, f dash x 12x स्क्वायर माइनस ऑफ 6x बाई 6 माइनस ऑफ 2 cos x, और यहां प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो ये हो गया इसका डेरिवेटिव 2 cos x, और आगे इसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, यानी ये 2x माइनस 1 इंटू साइन एक्स हुआ। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गया 6 कैंसिल करने से, और x कॉमन लेते हैं तो 2x माइनस 1 माइनस ऑफ 2x माइनस 1 इंटू साइन एक्स, ये आता है 2x माइनस 1 इंटू x माइनस साइन एक्स। x हमेशा साइन x से बड़ा है अगर x पॉजिटिव है, तो ये टर्म मेरा पॉजिटिव हुआ। अब x इक्वल टू हाफ पे ये 0 होता है, तो हाफ से बड़ा किसी भी वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव हुआ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि f dash x is positive in half to infinity, तो fx is increasing in the interval half to infinity, क्या ये कह सकते हैं? यानी इसका सही ऑप्शन होगा fx is increasing in the interval half to infinity। Now the next question is based on application of integrals, और ये है based on area bounded by plane curves। अब यहां पूछा गया है कि find the area bounded by x square plus y square is less than equal to 36 and y square is greater than equal to 9x। तो इसका मतलब क्या है, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है, और इस सर्कल का अंदर वाला एरिया हमें कंसिडर करना है। y square equal to 9x is a parabola like this, greater than equal to 9x यानी पैराबोला के बाहर, तो सर्कल के अंदर और पैराबोला के बाहर ये हिस्सा आता है। तो अगर हमें ये एरिया निकालना है तो इसके लिए कंप्लीट सर्कल का एरिया निकाल लें, और उसमें से ये जो खाली रीजन है इसको सब्ट्रैक्ट करें। तो अब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36 है, तो ये पॉइंट 60 हो गया। अब ये पॉइंट हम पहले कैलकुलेट करते हैं, x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसके लिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36 और वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x अगर पुट करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 12 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 3। तो अब ये ब्लैंक एरिया पहले कैलकुलेट करते हैं। तो ये ब्लैंक एरिया ये सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस है। अब पहले ये पैराबोला का एरिया यहां से लेकर यहां तक ये कैलकुलेट करते हैं, फिर सर्कल का एरिया यहां से यहां कैलकुलेट करते हैं और इसका डबल कर देते हैं। तो ब्लैंक एरिया इज हाउ मच, तो ब्लैंक एरिया सपोज a सफिक्स b हमने लिखा, तो ये होगा 0 से 3 एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला। नाउ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 9x है, तो अबव द x एक्सिस कितना है, रूट ओवर ऑफ 9x, तो रूट ओवर ऑफ 9x dx प्लस सर्कल का एरिया यानी 3 से लेकर 6 तक रूट ओवर ऑफ 36 माइनस x स्क्वायर dx।
और इसका 2 गुना हमें करना है, यानी इतना। सो द ब्लैंक एरिया इज इक्वल टू दिस मच। अब इसे पहले कैलकुलेट करते हैं। √9 को हम बाहर लिख सकते हैं 3, √x का इंटीग्रेशन x टू द पावर 3/2 by 3/2 और लिमिट 0 से 3 हमने कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन x/2 √36 माइनस x स्क्वायर लिमिट 3 से 6 प्लस a²/2 तो 36/2 हो गया 18 और साइन इनवर्स ऑफ x/6 लिमिट 3 से 6। ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है। अब अगर इसे कैलकुलेट करें 3 3 कट गया 2 और 3 टू द पावर 3/2 यानी √27, तो इसे हम कहेंगे 3√3, तो ये आ गया 6√3। अब इसमें अगर पुट करते हैं 6 पुट करते ही ये कितना आता है 0। अब ये पार्ट 0 हो गया, 3 पुट करने से ये कितना आता है माइनस ऑफ 3/2, 36 माइनस 9 यानी 27 का रूट ओवर, सो √27 is 3√3, so this becomes minus of 9√3/2 और प्लस अब ये पार्ट आ गया 18 टाइम्स साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 3/6 यानी हाफ। तो इसे अगर जोड़ा जाए तो ये 6 माइनस 4.5 यानी 3/2, तो 3√3/2, तो ये 3√3 आ गया। अब ये होता है π/2 माइनस π/6 यानी π/3, तो 18 π/3 तो 6 π/3 और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया 12, तो ये माइनस ऑफ 3√3 और ये हो गया 12 टाइम्स ऑफ पाई। दिस इज द एरिया ऑफ द ब्लैंक रीजन। अब एरिया ऑफ सर्कल πr² होता है, यानी कितना हुआ एरिया ऑफ सर्कल इज 36 पाई। So the required area will be 36 pi minus this blank region यानी minus 3√3 minus 12 pi, तो ये 24 pi minus of 3√3, ये हमारा सही ऑप्शन आता है। तो जैसा आप देख सकते हैं ये क्वेश्चंस ना तो कोई बहुत ज्यादा मुश्किल है और ना ही ऐसा है जो आप सोच ना सके। ये सभी काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं जो कोई भी बच्चा अगर सिंसियरली पढ़े तो उसे आसानी से सॉल्व कर सकता है। अगला सवाल है द इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू 3x plus y minus 2z plus 1 equal to 0 and 2x minus 5y minus z plus 3 equal to 0 such that the plane passes through 1 2 minus 3। अब अगर कोई प्लेन का इक्वेशन निकालना हो जो ऐसे किसी दो प्लेन से परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल वेक्टर ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन क्या होगा, ये प्लेन्स का डायरेक्शन रेशियो उसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। r minus a dot n अगर लगाते हैं तो डायरेक्टली वी कैन राइट इक्वेशन ऑफ प्लेन टू बी x minus 1 y minus 2 z minus minus 3 यानी z plus, ये हमने r minus a लिख दिया। अब ये नॉर्मल वेक्टर्स अगर लिखते हैं तो 3 1 minus 2 2 minus 5 minus 1 और ये डिटर्मिनेंट ये डायरेक्टली हमें प्लेन का इक्वेशन दे देगा। तो अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो गया -1 और ये -10 यानी -11 into x minus 1 -3 plus 4 यानी 1, तो ये माइनस ऑफ y minus 2 -15 minus 2 यानी -17 टाइम्स ऑफ z plus 3 इक्वल टू 0। माइनस अगर काट देते हैं तो 11x minus 11 plus y minus 2 plus 17z plus 51 equal to 0। तो 51 minus 13 is 38, तो required plane's equation will be 17z और plus 38 equal to 0 और ये हमारा प्लेन का इक्वेशन होगा। अगला सवाल अब आता है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से।
तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी हमें कहां चेक करना चाहिए? Where should we check for continuity and differentiability of a function? हमेशा उन पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी चेक किया जाता है जहां फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा हो या फंक्शन में टेंडेंसी है किसी पॉइंट पे अनडिफाइंड होने का। तो अगर हमने एक फंक्शन, हमें ऐसा दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x minus 1 into cos of 2x minus 1 by 2 times pi, और अब ऑप्शन है, अब ये स्क्वायर ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को सिग्निफाई करता है। तो पहले हम इस टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं। cos of 2x minus 1 by 2 times pi, क्या हम इसे cos of pi x minus of pi by 2 यानी इसे sin pi x लिख सकते हैं। तो ये फंक्शन को अगर हमने सिंप्लीफाई किया, ये आ गया दिस इनटू sin of pi x। अब जैसा आप देख सकते हैं, इंटीग्रल पार्ट फंक्शन कहां पे डिसकंटिन्यूअस होता है? ये डिसकंटिन्यूअस होता है हर वैसे पॉइंट पे जहां ये इंटीजर हो। तो x minus 1 इंटीजर कहां होगा? whenever x is an integer। तो यानी यहां कंटिन्यूटी का क्वेश्चन अराइज कहां करता है? The question of continuity arises only at those points where x is an integer। तो अगर मैं किसी भी पॉइंट x इक्वल टू n पे LHL लेता हूं, तो क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ n माइनस h, यानी हम इसे लिखेंगे लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n माइनस h माइनस 1 इनटू साइन ऑफ पाई टाइम्स ऑफ n माइनस h। अब अगर ये पार्ट ये टेंडिंग टू 0 है, सॉरी, as h tends to 0, तो this tends to n times pi, और sin n pi कितना होता है? 0। तो ये भले एक इंटीजर हो लेकिन ये टेंडिंग टू 0 है, तो इसकी वजह से ये प्रोडक्ट हम कितना लिखेंगे? 0। RHL will be equal to limit of h tending to 0 f of n plus h, और ये limit of h tending to 0 greatest integer function of n plus h minus 1 into sin of pi times n plus h। अब यहां पे भी ये पार्ट टेंडिंग टू n pi है, तो sin n pi is 0, यानी ये पार्ट भी हम कितना लिखेंगे? 0। तो अगर ये LHL RHL दोनों 0 है, अब f of n जरा देखें, तो n minus 1 into sin of n pi, और ये भी 0 आता है। तो LHL RHL and the value of the function, ये तीनों n पे बराबर है। तो जहां ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होने का संभावना था, उस पॉइंट पे भी ये कंटिन्यूअस आया। तो डेफिनेटली हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन हर रियल वैल्यू ऑफ x के लिए कंटिन्यूअस होगा, यानी हमारा सही कंक्लूजन होगा कि fx इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। So there is no point where this function can become discontinuous. It will be continuous everywhere। और इसी लिहाज से ये पहला ऑप्शन, continuous for every real x, this is what we can say is correct। Now the next question is based on indefinite integral। Now what is the concept? The concept is कि अगर यहां पे प्लस माइनस साइन थीटा या प्लस माइनस कॉस थीटा हो, डिनोमिनेटर में फंक्शन ऑफ साइन 2 थीटा हो, तो ऐसे हर केस में एक ही कंक्लूजन अप्लाई किया जाता है कि न्यूमरेटर में जो भी टर्म है उसको इंटीग्रेट करके टी पुट करना है। दैट इज द क्लियर कट लॉजिक बिहाइंड ऑल दीज कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस। इसे इंटीग्रेट करें और इसे टी मान लें, ये अपने आप स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। अब इस साल का जो सवाल है, I has been given as cos theta minus of sin theta divided by 8 minus of sin 2 theta root over, and this is equal to a times of sin inverse sin theta plus cos theta divided by b और प्लस अ कांस्टेंट c। तो ये पूछा गया है कि ये ऑर्डर्ड पेयर AB का वैल्यूज क्या होगा। नाउ एज पर आवर थ्योरी,
यू कैन सी न्यूमरेटर में cos थीटा माइनस sin थीटा यानी ऐसा ही टर्म है। तो इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर, अब cos थीटा का इंटीग्रेशन हुआ sin थीटा, माइनस sin थीटा का इंटीग्रेशन हुआ cos थीटा, और इसे हम t पुट करेंगे। अब ये जैसे t पुट किया तो ये पूरा dt हो गया, स्क्वायर करते हैं इसे, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा कितना हुआ t स्क्वायर, यानी 1 प्लस sin 2 थीटा इज t स्क्वायर। तो sin थीटा कितना हुआ, so I will be equal to integration of dt by 8 minus of sin 2 theta यानी t square minus 1 का root over. So this is dt divided by 9 minus t square root over, यानी ये sin inverse of t by 3 है, where t sin theta plus cos theta. So straight away on comparison we get a equal to 1 and b equal to 3. So the ordered pair AB will be equal to 1, 3. So your first option is going to be correct in this case. अब अगला कॉन्सेप्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस को लेकर। तो फंक्शंस को हम 1 1 या many 1 ये किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे f(r) to r, fx is equal to 2x minus 1 और gx दिया हुआ है x minus half divided by x minus 1, और हमें पूछा गया है कि f of gx क्या होगा। तो सबसे पहला स्टेप f of gx हम क्या लिख सकते हैं, 2 into x minus half divided by x minus 1 minus, जैसे एलसीएम लेते हैं ये हो गया 2x minus 1 minus of x minus 1 और divided by x minus 1 यानी ये x by x minus 1 है। This function is differentiable at all points excluding 1. तो what is the domain of this function? तो domain of f of g is r minus the value 1, यानी x equal to 1 पे ये undefined हो जाएगा। और एक बात मार्क करें, x tending to infinity पे ये कितना देता है, 1 वैल्यू देता है, लेकिन इंफिनिटी प्रैक्टिकली कोई पॉइंट है नहीं है, यानी कैन वी गेट द वैल्यू 1, कैन वी गेट द वैल्यू 1 ऑफ दिस फंक्शन, ये रेशियो कभी 1 नहीं हो सकता, यानी f ऑफ gx कैन नेवर बी इक्वल टू 1। तो ऑटोमेटिकली इसका रेंज से ये वैल्यू आउट हो गया। y एक्सिस में से अगर एक भी वैल्यू आउट हो गया तो क्या ये फंक्शन ऑन टू हो सकता है, नहीं हो सकता। तो पहले ही कंक्लूजन आ गया कि इट इज एन इनटू फंक्शन। अब ये 1 1 है कि नहीं, इसके लिए एक सिंपल सा काम करते हैं, इसका dy by dx निकालते हैं। तो ये हो गया 1 into x minus 1 minus of x by x minus 1 का होल स्क्वायर, यानी ये हो गया 1 minus 1 by x minus 1 होल स्क्वायर। अगर 1 को छोड़ दिया जाए तो ये हमेशा नेगेटिव है, यानी क्या है, ये डिक्रीजिंग है। तो हम इसे कहेंगे कि f of gx is a 1 1 फंक्शन। तो ये 1 1 तो है, लेकिन 1 पॉइंट इसके रेंज में नहीं है, इसकी वजह से ये इनटू फंक्शन कहलाएगा, यानी fx is a 1 1 function but it is an into function. So this will be the correct answer for this case. Now let's move to the next question. Now the next question is the distance of the point 119 from the point of intersection of this plane x plus y plus z equal to 17 and the line x minus 3 by 1 equal to y minus 4 by 2 equal to z minus 5 by 2। तो हमें पूछा गया है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा इन दोनों के इंटरसेक्शन से। तो अब अगर ये एक प्लेन है और ये लाइन ऐसे पास कर रहा है सपोज, तो सबसे पहले हमें ये पॉइंट कैसे निकालना है, तो इसको अगर हम लैम्डा मानते हैं तो एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन is 3 plus lambda,
4 plus 2 lambda and 5 plus 2 lambda. अब ये पॉइंट P, ये पॉइंट R अगर वेरिएबल पॉइंट, हम ऐसा लिख सकते हैं, R पॉइंट इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये पॉइंट को इस प्लेन में पुट कर दो, तो 3 plus lambda plus 4 plus 2 lambda plus 5 plus 2 lambda is equal to 17. तो 5 lambda is equal to 5 4 9 3 12 यानी 5, तो lambda is 1. तो लैम्डा 1 होने से पॉइंट कितना आया, 3 plus 1 4, 4 plus 2 6 and 5 plus 2 7. अब P और R का डिस्टेंस हमें चाहिए, तो क्या सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो 4 minus 1 का होल स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर 9, 6 minus 1 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, 7 minus 9 minus 2 का स्क्वायर 4, तो 13 plus 25 यानी 38. So root 38 is the correct distance of the from the correct option, I mean to say. Now the next question is from system of equations. Now before I discuss this question, now when does a system of equations become inconsistent? तो अगर एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम है तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डेल्टा 0 होना चाहिए और एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा x, डेल्टा y और डेल्टा z शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तभी सिस्टम इनकंसिस्टेंट कहलाता है. तो नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द इक्वेशंस. Now we have been given equations 3x plus 2y minus of kz equal to 10, x minus 2y plus 3z equal to 3, x plus 2y minus of 3z equal to 5 है. हमें k और m का वैल्यूज चाहिए जिसके लिए ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इनकॉन्सिस्टेंट है. तो इनकॉन्सिस्टेंट होने के लिए जो जो क्राइटेरिया चाहिए, सबसे पहला क्राइटेरिया है डेल्टा को 0 कर दिया जाए. व्हाट इज डेल्टा? कोएफिशिएंट डिटरमिनेंट 3 2 minus k, 1 minus 2 3, 1 2 minus 3. Now let us add row 1 with row 2, sorry row 2 with row 3. तो ये 3 2 minus k, ये हो गया 2 0 0 1 2 minus 3. Now let us expand it along the second row. तो -2 into -6 माइनस माइनस प्लस, तो ये 2k minus 6 into -2, और इसे 0 होने के लिए k कितना चाहिए 3. तो ये पार्ट हमें पहले ही मिल गया. अब डेल्टा x कैलकुलेट करते हैं. तो डेल्टा x विल बी इक्वल टू 3 1 1, ये जो फर्स्ट कॉलम है इसे 10 3 और 5m इससे हमने रिप्लेस कर दिया. 2 minus 2 2, और ये हो गया -3 3 -3. अब इसमें से अगर हम ये कॉमन ले जाते हैं तो ये 0 आ जाता है, 6 कॉमन आ गया, इनफैक्ट -2 कॉमन ले जाते, तो ये -6 आया, 10 3 5m, ये हो गया -1 1 -1, और यहाँ पे भी रह गया -1 1 -1. अब ये दो कॉलम्स आइडेंटिकल हैं, यानी ये तो 0 हो गया. तो लेट अस वेरीफाई डेल्टा y. अब डेल्टा y क्या है? तो डेल्टा y विल बी 3 1 1, ये हो गया 10 3 5m, और यहां पे हम लिखेंगे -3 3 -3. अब इसे कैलकुलेट करते हैं. तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आता है, 3 into -9 minus of 15m. Now next, -10 into -3, that is -6. Then again -3 times of 5m minus 3. Now -45 minus 15 -60m. -27 plus 9 plus 60.
तो 69 minus of 27. So this gives 42. So 42 minus of 60m. Now this should not be equal to 0. अब ये अगर 0 नहीं होना चाहिए तो हम क्या लिखेंगे? 6 into 7 minus of 10m should not be 0. Yani m should not be equal to 7 by 10. So k should be equal to 3 and m should not be equal to 7 by 10. So this will be the correct option corresponding to this question. So the next question is based on inverse trigonometric functions. Now one thing you should always remember कि जब कभी tan in किसी भी inverse के terms में series दिया गया हो, चाहे वो series sin inverse में हो, cos inverse में हो या tan inverse में हो, basic difference of the two inverse trigonometric functions, ये formulas हमेशा use होता है. जैसे tan inverse x minus tan inverse y is tan inverse of x minus y by 1 plus xy. तो जब कभी भी tan या cot inverse में कोई सीरीज हो, हमेशा यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है. Now let's get back to the question what we have been asked. Limit of n tending to infinity, summation r equal to 1 to n, tan inverse of 1 by 1 plus r square. Now this is what we have been asked. तो ऐसे केस में पहले इस सम को कैलकुलेट किया जाए. तो अगर हम इस सम को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसे इस फॉर्मेट में पहले लिखना है. तो tan इनवर्स ऑफ 1 बाय 1 प्लस r इंटू r प्लस 1, इसको हमने x इंटू y में लिखा. अब इस टर्म को हम लिखेंगे r प्लस 1 माइनस r. अब ये इसके साथ इस स्ट्रक्चर के साथ मैच करता है. तो क्या इसे हम tan इनवर्स ऑफ r प्लस 1 और माइनस tan इनवर्स ऑफ r लिख सकते हैं. तो अब समेशन ऑफ tan इनवर्स 1 बाय 1 प्लस r स्क्वायर, r 1 से लेकर n तक अगर हम लिखना चाहें तो r को 1 पुट करने से ये कितना आता है? tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1. अब अगर मैंने 2 पुट किया तो ये tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2. नेक्स्ट tan इनवर्स ऑफ 4 माइनस tan इनवर्स 3. और इस तरीके से अगर n पुट करते हैं तो ये आया tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ n. ऑन एडिंग ऑल ऑफ देम ये डायगोनली सारे टर्म्स कट रहे हैं, यानी ये समेशन कितना हुआ? tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1. अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्या इसे ऐसे लिखेंगे? tan ऑफ लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1 कितना होता है? पाई बाई 4. क्यों? tan 45 इज इक्वल टू 1. तो tan इनवर्स ऑफ 1 45 डिग्री यानी पाई बाई 4. अब tan इनवर्स इंफिनिटी कितना होता है? तो tan पाई बाई 2 इज इंफिनिटी यानी tan इनवर्स इंफिनिटी इज पाई बाई 2. तो ये हो गया tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 यानी tan पाई बाई 4 यानी इसका वैल्यू 1. तो फॉर दिस सीरीज द करेक्ट आंसर विल बी 1. अगला क्वेश्चन फिर प्रोबेबिलिटी का है. Now, you have been given that B1, B2, B3 are 3 independent events. 3 independent events. Probability that only B1 occurs is alpha. Probability that only B2 occurs is beta, and probability that only B3 occurs is gamma. Or that none of the events occur, वो probability P है. और अब यहाँ पे तो probability that only B1 occurs, let us assume this to be x. Probability that B2 occurs, इसे हम y मान लेते हैं. और probability that B3 occurs, इसे हम z मान लेते हैं. अब हमें दिया हुआ है कि अल्फा माइनस 2 बीटा इंटू p is equal to अल्फा बीटा. ये पहला रिलेशन दिया है.
beta minus 3 gamma into P is equal to 2 beta gamma, और हमें पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B3, ये रेशियो कितना होगा? दिस इज व्हाट वी हैव बीन आस्क्ड. तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली B1 टू ऑकर हम निकालते हैं, तो B1 के ऑकर करने का, B1 ऑकर किया लेकिन B2 B3 नहीं किया. इवेंट्स क्या है? इंडिपेंडेंट. तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या हुआ? B1 occurs but B2 and B3 does not occur. तो यानी अल्फा इज इक्वल टू x इंटू 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस z. क्यों? B2 के नहीं ऑकर करने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 1 माइनस वाई. B3 के नहीं ऑकर करने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 1 माइनस z. तो सिमिलर, सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली B1 ऑकर्स. बीटा क्या लिखेंगे? ओनली B2 ऑकर्स. यानी क्या हुआ? B1 और B3 ऑकर नहीं कर रहा है, यानी 1 माइनस एक्स इंटू वाई इंटू 1 माइनस जेड. गामा क्या लिख सकते हैं? ओनली B3 ऑकर्स, यानी 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई इंटू जेड. और तीनों में से कोई भी ऑकर नहीं कर रहा है, वो हो गया P. तो P इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस जेड. अब हम यहां पे जरा डिवीजन करते हैं. अल्फा बाई P में ये दोनों फैक्टर कट गया, तो ये x बाई 1 माइनस एक्स आया. बीटा बाई P इज इक्वल टू y बाई 1 माइनस वाई, और गामा बाई P इज इक्वल टू z बाई 1 माइनस z. ये हमने निकाल लिया. अब ये गिवन रिलेशंस में आते हैं. हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B2. यानी हमें क्या चाहिए? x बाई z चाहिए. दिस इज व्हाट वी नीड. तो अब इन रिलेशंस को यूज करते हैं. तो लेट अस डिवाइड बाय अल्फा बीटा. तो ये कितना आया? अल्फा माइनस 2 बीटा बाय अल्फा बीटा इनटू P इज इक्वल टू 1. या हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये अल्फा कट गया, तो P बाई बीटा माइनस ऑफ 2P बाई अल्फा इज इक्वल टू 1. अब P बाई बीटा कितना है? P by beta is nothing but, now let us find the reciprocal. So from here, P by alpha is 1 minus x by x. Okay. तो ये हो जाएगा 1 minus y by y minus 2 times of 1 minus x by x, and this is equal to 1. अब इसे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो what do I get? 1 by y minus 1 minus 2 by x plus 2 is equal to 1. तो यहां से आ गया 2 by x is 1 by y, यानी x इक्वल टू 2y. ये हमारा पहला रिलेशन से है. अब यहां से हम लिख सकते हैं बीटा माइनस 3 गामा बाई बीटा गामा. नाउ दिस इनटू P इज 2, यानी P बाई गामा माइनस 3P बाई बीटा इज इक्वल टू 2. अब यहां से ये वैल्यूज रिप्लेस करते हैं. तो P बाई गामा इज 1 माइनस z बाई z माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस y बाई y इज इक्वल टू. तो यहां से आ गया 1 बाई z माइनस 1 माइनस 3 बाई y प्लस 3 इज इक्वल टू 2. 2 कट गया, तो 3 बाई y इज इक्वल टू 1 बाई z, यानी y इज इक्वल टू 3z. अब यहाँ पे x बाई z चाहिए, तो x का वैल्यू कितना है? 2y. तो ये हो गया 2y डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे z का वैल्यू इज y बाई 3, तो ये कितना आता है? 6. So the correct answer to this question will be 6. Now, the next question is based on vectors. Now, what does vector triple product signify? अगर हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट A क्रॉस B क्रॉस C का बात करें तो ये क्या सिग्निफाई करता है? तो let me explain that first, because that is the concept which we are going to use in this question. Now, A cross B cross C. Now, it always gives a vector coplanar with A and B,
और ये क्या देता है, परपेंडिकुलर टू सी। और एक और बात, इसका वैल्यू हम क्या लिखते हैं, लैम्डा टाइम्स फर्स्ट थर्ड यानी a डॉट सी into the vector b minus of b dot c into the vector a. See, this is how we write. तो अब यहां क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि c is coplanar with the vectors a equal to minus I plus j plus k and b equal to 2i plus k, और साथ में ये दिया हुआ है a dot c is equal to 7, c is perpendicular to b. तो हमें चाहिए 2 times of vector a plus b plus c और इसका square. This is what has been asked, an integer type question. तो यहाँ पे वेक्टर c a b के साथ कोप्लेनर है, लेकिन किसके परपेंडिकुलर है, b के, यानी यहां पे c की जगह b डालना है और यहां भी a b होना है। तो हम ये कह सकते हैं कि दैट रिक्वायर्ड वेक्टर c इज लैम्डा टाइम्स a क्रॉस b और इसका क्रॉस प्रोडक्ट b के साथ, हम ऐसा कह सकते हैं, यानी ये कितना होगा, लैम्डा टाइम्स a डॉट b टाइम्स द वेक्टर b माइनस ऑफ b डॉट b इनटू द वेक्टर a। क्या ऐसा कहा जा सकता है? तो ये हो गया। अब a डॉट b कैलकुलेट करते हैं, तो -2 प्लस 1 यानी -1, तो ये -b हो गया। b डॉट b इज 4 प्लस 1 5, सो -5 टाइम्स a। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आता है -b यानी -2i माइनस k, और माइनस ऑफ 5a तो माइनस माइनस प्लस 5i माइनस ऑफ 5j और माइनस ऑफ 5k। तो ऑन सिंप्लीफिकेशन ये 3i माइनस ऑफ 6j और माइनस ऑफ 5j और माइनस 6k, लैम्डा टाइम्स दिस। नाउ इफ दिस इज माय वेक्टर c, अब a डॉट c कितना दिया हुआ है, 7, तो a डॉट c इज इक्वल टू, अब इसका डॉट प्रोडक्ट अगर हम इसके साथ लेते हैं तो लैम्डा टाइम्स -3 -5 -6, और ये होता है 7। तो लैम्डा इज इक्वल टू -12। अब लैम्डा -12 यहां पे पुट कर देते हैं, तो c इज इक्वल टू, सो c वेक्टर इज -12 ऑफ 3i माइनस 5j और माइनस 6k। तो a प्लस b प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू हम ना, पहले ये कैलकुलेट करते हैं, तो a प्लस b यानी i -3/2, तो 1 -3/2 इज -12, तो ये -12 है। अब ये हो गया 5/2j प्लस j, तो 7/2 टाइम्स ऑफ j। नेक्स्ट ये प्लस 5/2 प्लस j, k 2k और प्लस 3k, तो 2k प्लस 3k इज 5k। तो a प्लस b प्लस c वेक्टर का स्क्वायर हम लिख सकते हैं 1/4 प्लस 49/4 प्लस 25, तो 50/4 यानी 25/2 प्लस 25। अब इसका 2 टाइम्स अगर हम करते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c, now this vector square will be 25 plus 50 yani 75. So this is going to be our correct answer for this question. I hope you are all able to understand. So vector triple product helps us solve this question easily. अब अगला सवाल है बेस्ड इंटीग्रेशन पे। तो इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रल अब का एप्लीकेशन है ये,
-a to a, modulus of x plus modulus of x minus 2. Now this dx is given as 22, where a is greater than 2, ये भी mentioned है, और हमें निकालना है a से minus a, integral x plus integral part of x dx. This is what we are required to find out. तो सबसे पहले तो पहला लॉजिक ये कहता है कि मॉड्यूलस ऑफ x, हाउ इट इज डिफाइंड, minus x if x is negative, x if x is positive. तो अगर हम ये देखते हैं तो मॉड्यूलस ऑफ x, ये दोनों फंक्शंस कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है? The first function is non-differentiable at 0, whereas the second function is non-differentiable at 2. तो हम ऐसा करेंगे कि -a से 0 एक ब्रेक पॉइंट, तो ये हो गया -x और ये हो गया 2 - x dx. ये पहला इंटीग्रल, 0 से 2 x और ये लिखेंगे 2 - x, क्योंकि x लेस देन 2 के लिए x - 2 नेगेटिव है, इसीलिए मॉड हटाने से ये 2 - x आया. अब 2 से लेकर a तक, अब मॉड x को x लिखा जाएगा और ये x - 2, क्योंकि ग्रेटर देन 2 के लिए ये पॉजिटिव है, और ये 22 के बराबर. तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, -a to 0, 2 minus of 2x dx plus 0 से 2, 2 minus of 2x dx plus 2 से लेकर a तक 2x - 2 dx, और ये 22 है. अब अगर हम इसे इंटीग्रेशन करते हैं तो ये कितना देता है? 2x लिमिट -a से 0 -x स्क्वायर लिमिट -a से 0 प्लस 2x लिमिट 0 से 2 -x स्क्वायर लिमिट 0 से 2 प्लस x स्क्वायर लिमिट 2 to a -2x लिमिट 2 to a. नाउ ऑन कैलकुलेशन ये वैल्यू 22 के बराबर, तो ये कैलकुलेशन करते हैं तो ये कितना आता है? माइनस ऑफ -2a यानी 2a, माइनस माइनस प्लस अगेन a स्क्वायर, 2 into 2 4 -4 प्लस ये हो गया a स्क्वायर -4, और यहां पे हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ 2a माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ a -2, और दिस इज इक्वल टू 22. 2a कट गया, so we are getting 2a square is equal to 18, यानी a square is equal to 9. तो a हम कौन सा वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे? 3. अब a का वैल्यू एक बार हमने कैलकुलेट कर लिया. नाउ लेट अस इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल. तो using a equal to 3, I can write a to b f x dx is minus b to a f x dx. इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए हम इस इंटीग्रल को minus a to a x dx और यहाँ minus a to a इंटीग्रल पार्ट ऑफ x dx ऐसा लिख सकते हैं. अब minus a to a x dx ऑड फंक्शन है, तो इसे 0 लिख सकते हैं. तो अब हमारे पास बचा -3 to 3 इंटीग्रल पार्ट ऑफ x dx. अब इंटीग्रल पार्ट का जो ग्राफ है वो एक स्टेयरकेस टाइप का ग्राफ है, कुछ इस किस्म का. -3 -2 -1 0, then till 1, from 1 to 2 it is like this, from 2 to 3 it is like this. So this point is 1, this is -1, this is -2, and this is -3. तो अगर हमें चाहिए, यानी ये एरियाज हमें निकालना है. See, these are the areas which we need. अब हर ब्लॉक का एरिया कितना है? The area of this block is going to be 1 unit. इसका हाइट 2 है और बेस 1 है, तो ये +1 +2 -1 -2 -3. तो इसका वैल्यू हो गया -3 -2 -1 +0 +1 +2.
और इस पूरे का आगे एक माइनस, यानी कितना हुआ 3 यूनिट्स. So the correct value of this integral will be equal to 3 units. ये जो ग्राफिकल मेथड है एरिया कैलकुलेट करके डेफिनेट इंटीग्रल निकालना, नाउ दिस इज इन फैक्ट अ वेरी फास्ट प्रोसेस जो फॉलो करने से काफी जल्दी आंसर देता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऐसा एक इक्वेशन 4 by sin x by 1 minus sin x equal to alpha. Find the least value of alpha for which this equation has at least one solution. So now keep the logic in mind कि अगर कभी भी fx equal to कोई भी constant alpha है, तो alpha should belong to the range of fx. तभी इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन पॉसिबल है. हाँ, यहां ये मेंशन्ड है x belongs to 0 to pi by 2. अब 0 से pi by 2 में इस फंक्शन का हमें अगर रेंज निकालना हो तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू यूज मैक्सिमा मिनिमा इन दिस टाइप ऑफ केसेस. तो ऐसे केस में अगर हमने sin x को t मान लिया तो अब t belongs to 0 to 1, ये हमारा इंटरवल हो गया. तो लेफ्ट साइड का जो फंक्शन है इसे हम फंक्शन ऑफ t 4 by t और प्लस 1 by 1 minus t, एलसीएम लेते हैं तो 4 minus 4t plus t यानी 4 minus 3t by t minus of t square लिख सकते हैं. Now apply differentiation, so f dash of t is minus 3 into t minus of t square minus of derivative of this into this. So now derivative of this 1 minus of 2t into 4 minus of 3t divided by t minus t square का whole square, ऐसा लिख सकते हैं. अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं. 3 into 2 6t square minus minus minus, तो minus 6t square plus 3t square यानी ये हो गया minus 3t square. Minus 8 minus 3 minus 11, so plus 11 minus 3 that is plus 8t. और ये हो गया -4 डिवाइडेड बाय t माइनस ऑफ t स्क्वायर का होल स्क्वायर. नाउ लेट्स फैक्टराइज द न्यूमरेटर. तो इसे हम +6 + 2 लिख सकते हैं. तो ये माइनस ऑफ 3t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 2t माइनस ऑफ 4 डिवाइडेड बाय t माइनस ऑफ t स्क्वायर का होल स्क्वायर. तो ये हो गया 2 माइनस ऑफ 3t इंटू t माइनस 2 divided by t minus t square का whole square. Now t is sin x, तो the valid जो critical value of t होगा वो हमेशा 1 से छोटा होगा, यानी t minus 2 is always negative. तो एक ही critical point valid है और वो है 2/3. अगर हम 2/3 से छोटा कोई वैल्यू लेते हैं तो ये पॉजिटिव है लेकिन ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होगा f dash t, यानी ये पॉइंट किसका है, मिनिमा का है. तो f मिनिमम का वैल्यू कितना हो, अब यहां पुट कर दें 2/3. तो 4/2/3 इज नथिंग बट 6 एंड 1/1 minus 2/3 इज 1/1/3 3. तो मिनिमम वैल्यू ऑफ f इज 9. अगर हम t टेंडिंग टू 1 होता है तो ये इनफाइनाइट होता है और ये 0 पे भी इनफाइनाइट होता है, यानी ये फंक्शन का मिनिमम वैल्यू 9 है. तो रेंज ऑफ f इज हाउ मच, तो रेंज ऑफ f इज 9 to infinity. अब सॉल्यूशन होने के लिए अल्फा का वैल्यू रेंज के अंदर होना चाहिए. इसका मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा कितना हो सकता है, तो द मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा पॉसिबल इज नथिंग बट 9. नाउ द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस ये डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस चैप्टर से बेस्ड है, तो लेट्स हैव अ लुक एट दैट आल्सो. Now the question is कि how many 3x3 matrices are possible whose entries are 0, 1, 2 such that sum of the diagonal elements of m into m transpose is equal to 7.
यानी ऐसे कितने 3x3 के मैट्रिसेस पॉसिबल हैं ताकि m इंटू एम ट्रांसपोज का जो डायगोनल एलिमेंट्स होगा उसका सम 7 है। हाँ, कोई भी एलिमेंट 0 1 2 3 के अलावा कुछ नहीं ले सकते। तो अगर हमने ऐसे लिया, नाउ लेट अस से कि हमने मैट्रिक्स m को एज्यूम किया से A B C D E F L M N ऐसे हमने लिखा। अब इसका अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ये हो गया ABC, ये DEF और यहां आ गया LM। अगर M इंटू एम ट्रांसपोज करते हैं तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या आएगा? देखो ABC इंटू ABC यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ M into M transpose is equal to A square plus B square plus C square. The next element will be, in fact, D square plus E square plus F square plus L square plus M square plus N square. तो हमारे पास 9 एलिमेंट्स हैं और इसका सम 7 होना चाहिए। अब A, B, C, D, E, F, L, M, N. Now all of them belong to 0, 1, 2. अब अगर मुझे सम 7 चाहिए तो लेट अस टेक ऑन द हायर साइड। अगर हमने एक एलिमेंट 2 लिया तो 4 हो गया, तो दूसरा एलिमेंट अपने आप कह सकते हैं कि 2 तो हो ही नहीं सकता है। तो 4 के साथ अब 1 का स्क्वायर लेंगे तो कितना 1 पॉसिबल है? तो अगर हमने पहला केस में ऐसे लिया कि 1 2 लिया तो ऑटोमेटिकली 3 वंस आई हैव टू टेक, और बाकी मैंने टोटल 4 एलिमेंट लिया 9 में से, तो बाकी रह गए 5 जीरोस हमें लेना। तो 9 एलिमेंट को मुझे 3 ग्रुप में, 9 स्लॉट्स हैं हमारे पास, 9 स्लॉट को हमें 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, 5 3 और 1 का। और ये डिवीजन कैसे पॉसिबल? 9 factorial divided by 5 factorial into 3 factorial into 1 factorial. Now let us calculate this. अब मैंने डिवाइड किया और उसी स्लॉट्स पे इन नंबर्स को 2 को, वो 0 को और 1 को प्लेस कर दिया, उतने ही मैट्रिसेस पॉसिबल होंगे। तो 9 into 8 into 7 into 6, 5 फैक्टोरियल हमने काट दिया और ये 6 भी कर दिया। तो 9 into 8 72, तो 72 into 7 and that is nothing but 504. अब एक से ज्यादा 2 तो ले ही नहीं सकते, लेकिन उससे कम तो ले सकते हैं। तो अगर हमने 0 2s ली, तो 0 2s अगर लिया तो अब बाकी सब मुझे 0 और 1 में से ही सिलेक्ट करना। तो हम क्या कर सकते हैं, 7 1s सिलेक्ट किया तो अब कितना बच गया, 2 zeros, यही कर सकते हैं। यानी अब यहाँ पे 2 तो हमें डालना ही नहीं है, तो 2 अगर हमें डालना ही नहीं है तो अब 2 ही ग्रुप में ना डिवाइड करेंगे, तो 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे, यानी 9C2 कोई भी 2 प्लेस सिलेक्ट किया, वहां पे 2 0 डाल दिया और बाकी जगहों पे 1 डाल दिया। तो ये 9 into 8 divided by 2 यानी 36। तो either this or this is possible, यानी टोटल नंबर ऑफ केसेस पॉसिबल कितना होता है, 540। तो 540 केसेस will be possible in this. Now the next question is also based on determinant matrices. Now let us take the question. We have been given a matrix P that is 3 -1 -2 2 0 alpha 3 -5 0. अब ये दिया हुआ है कि अल्फा इज एनी रियल नंबर और Q एक मैट्रिक्स है Qij that is of the order 3 × 3 such that PQ is equal to K times of I, where K is a real number. Q23 is equal to minus of K by 8
and determinant of q is equal to k square by 2. तो हमें वैल्यू चाहिए k square plus alpha square. Now a similar kind of question appeared in JEE Advanced also 2-3 years back. तो ऐसे केस में जब कोई पर्टिकुलर एलिमेंट हमें निकालना हो तो पूरा मैट्रिक्स ऑपरेट करने की जरूरत नहीं होती है. Now let us first calculate determinant of p. So determinant of p I can write 3 into 0 minus minus, that is 5 alpha, minus minus plus 1, 2 into 0 minus 3 alpha, or minus 2 into minus 10. So it will be 2 into 10. तो ये हो गया 15 alpha minus this, यानी 12 alpha plus 20. तो determinant of adjoint of p will be equal to 12 alpha plus 20 का whole square. Sorry. Now since you are given PQ is equal to K times an identity matrix, तो अगर हम P inverse से इसको multiply करें तो Q will be equal to K into P inverse of I, और P inverse I यानी कितना हो गया P, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे से मैट्रिक्स आएगा. अब ये K into adjoint of P और divided by determinant of P ऐसा लिख सकते हैं. I hope ये स्टेप में कोई कंफ्यूजन नहीं हो. अब adjoint of P कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स का कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज लेके निकालते हैं. मुझे अब यहाँ Q23 की जरूरत है, तो Q23 ट्रांसपोज लेने से आएगा. तो किसका ट्रांसपोज लेने से आएगा? 32 का. तो 32 यानी ये वाले एलिमेंट का कोफैक्टर हमें चाहिए, तो हम डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं Q23 will be K by determinant of P into, अब इसका कोफैक्टर 32 यानी माइनस हो गया, तो 3 अल्फा प्लस 4 यानी ये हो जाएगा -3 अल्फा -4, डायरेक्ट लिख सकते हैं. अब इसकी वैल्यू हमें दी हुई है माइनस ऑफ K by 8, तो माइनस माइनस कट जाता है, तो 24 अल्फा और प्लस 32 इज डिटर्मिनेंट ऑफ P यानी ये 12 अल्फा प्लस 20. तो यहां से हमें मिलता है 12 अल्फा इज माइनस of in fact 12 यानी अल्फा is -1, और यहां से हम कह सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ P का वैल्यू 20 minus 12 यानी 8. अब डिटर्मिनेंट ऑफ Q कितना होता है? तो डिटर्मिनेंट ऑफ Q यानी इसका डिटर्मिनेंट, तो इसका डिटर्मिनेंट हम क्या लिखेंगे? K क्यूब डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ P होल स्क्वायर, और इसका डिटर्मिनेंट होल क्यूब into determinant of P whole square. तो ये K cube divided by determinant of P है, और ये कितना दिया हुआ है? K square by 2. तो हम यहां से K square काट देते हैं, तो K is equal to determinant of P by 2 यानी 8 by 2 4. तो K is 4, alpha is -1. तो K square plus alpha square, 4 का square 16 plus 1 17. So this is the value. So I hope you have understood. So these 18 questions. So 18 questions featured in the first shift from 12th part. Now the remaining 12 questions of 11th I'll be discussing in the next series. Okay. Thanks for watching. And if you find something interesting or that something you have learned something, please do like and subscribe. Thank you.